बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंग आवाज और मैं हूं श्वेता पांडे। आज जिस घटना पर हम चर्चा करने वाले हैं वो वाकया बीते शनिवार यानी 28 सितंबर का है। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दिन बाद इस पर कौन सा नया पहलू जुड़ गया। बिल्कुल, सारी जिज्ञासाओं का होगा अंत यहीं पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर शुरू करते हैं आज के मुद्दे को। आसनसोल वार्ड 58 के 27 मोड़ पर बिजली के हाई टेंशन टावर को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। बिजली विभाग के सर्वे में टावर के लोकेशन में जो एरिया है उस एरिया की जमीन पर मालिकाना हक का दावा करते हैं कुछ लोग हाई टेंशन टावर लगाने पर रोक लगा रहे हैं। हाँ हाईकोर्टेर निर्देशे निर्देश मतो प्रशासन आसे हाँ स्थानीय निवासियों ने हाईटेंशन टावर लगाए जाने का कड़ा विरोध करते हुए सड़क जाम कर दी और काम रुकवा दिया। लोगों का दावा है कि जिस जमीन पर बिजली विभाग टावर लगाने की कोशिश कर रहा है वो जमीन कई स्थानीय निवासियों के नाम पर है। इस जमीन पर जयश्री बावरी, पुष्पा बावरी, मोनिका बावरी, आदेश बावरी और तपन बावरी का मालिकाना हक बताया जा रहा है। आरोप है कि बिजली विभाग ने जमीन के असली मालिकों को बिना सूचना दिए और मुआवजा दिए जबरन कब्जा करने की कोशिश की है। বলছে আমাদের কাছে অর্ডার আছে স্যার শুধু বলছি যে আমার কাছে অর্ডার আছে জমিটা আমাদের স্যার 5 জনের স্যার কি নামে আছে তপন বাউরি আমার নাম আদেশ বাউরি তপন বাউরি সুপোষ বাউরি জয়শ্রী বাউরি আর একটা নির্দেশক আছে কি বলছে প্রশাসন তো কথা বলছে বলছে আমাদের অর্ডার আমাদের কেউ কথা করেনি আর আমাদের অর্ডার দিয়েছে অর্ডার দিয়ে আমরা ভাঙছি আমরা চাই স্যার এই জায়গাটা আমাদের স্যার ছেড়ে করুন না যেখানে কোন স্যার এই জায়গাটা ছেড়ে করুন বহু কষ্টে স্যার জমিন আমাদের কাগজপত্র আছে কাগজপত্র না থাকতো স্যার এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলতাম আপনার সাথে কালকে দিতে পারবেন ঘুরে বছর আমাদেরকে তো দেওয়া উচিত ছিল অর্ডারটা তো আমাদেরকে দেয়নি জমিটি আপনি কিনেছিলেন হ্যাঁ কবে কিনেছিলেন 1.5 বছর হয়ে গেল প্রশাসন বলছে আমরা টাওয়ার বসাবো আমরা অর্ডার আছে ডিএমের অর্ডার আছে আমরা জমিটা নেবই জবরদস্তি 1.5 বছর আগে কার কাছ থেকে কিনেছিলেন পবন কুমার নন্দী আপনারা কজন মিলে কিনেছিলেন 5 জন মিলে কে কে জয়শ্রী বাউরি, আমি তপন বাউরি, আদেশ বাউরি, পুষ্পা বাউরি, অনিতা সিং। না আপনার কি উদ্দেশ্য নিয়ে কিনেছিলেন? 6,500 লেডিস এখানে সেলাই সেন্টার খুলবো আমরা। সেলাই সেন্টার খোলার জন্য আমরা এখানে করেছি 6,500 লেডিসকে কাজ দেওয়ার জন্য। যেটা মমতা ব্যানার্জি বলেছে যে হ্যাঁ পুরো এলাকা সবাই মিলে এখানে কাজ করে খেতে পারবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী করবে। তো আজকে হঠাৎ করে কি হলো যে ভাঙতে হলো কি কারণ? বললেন দিদিকে বললেন দিদি। আমরা কোনো জানি না, হঠাৎ এসে পরে দেখছি যে এখানে ডোজার চলছে। এর আগেও তো একবার ভাঙার ভাঙা ছিল কিন্তু তখন ওনারা ভাঙেনি। আমরা এসে পরে আপনাদের কোনো নোটিশ দিয়েছিল? না না ওনাদের কাছে কোনো নোটিশ কিন্তু আমাদের কাছে কোনো বিনা নোটিশকে তোড়া গেছে। পুলিশ বারবার আপনাকে বলছিল যে আপনাদেরকে মিটিং এ ডাকা হয়েছিল। এই বিষয়টা আমাদেরকে মিটিং এ আমাদেরকে ডাকেনি স্যার, আমরা নিজে থেকে গেছি। কমসে কম নোটিশ মিলনা চাইয়ে না। আমাদেরকে নোটিশ এটা কোনো নোটিশ দেয়নি যে আপনাদেরকে মিটিং আমরা ডাকছি বা কিছু। আমরা নিজে থেকে গেছিলাম শোনার জন্য যে কি বলছে। তো আমি এখানে বক্তব্য রেখেছিলাম, আমি বলেছি এখানে স্যার এই জমিটা ছেড়ে যদি এই সাইডে বসানো হয় তাহলে কি কোনো আপত্তি আছে? বললো না। এনারা বললো আমরা ভেরিফাই পাঠাবো, সব কিছু দেখে পরে ওরা সব করে গেছে, বলছে হ্যাঁ হয়ে যাবে। তখন ডিএমও বলেছে যে হয়ে যাবে, কিন্তু এখন কি হলো জানি না, আজ থেকে ভাঙাভাঙি চালু হয়ে গেছে। আপনারা এখন কি কাজ বন্ধ করলেন? হ্যাঁ ডিসি স্যার কি বললেন আপনাদেরকে? পুলিশ কমিশনার স্যার কি বললেন? বললো যে আপনারা কিন্তু এখানে আটকাতে পারবেন না, এখানে কাজ হবে। আপনাদেরকে ডেকেছে না আমাদের কথা বলার জন্য? কিছু বলে না। আজকে কিভাবে কাজটা বন্ধ হলো? আজকে আমরা ওই যে এখানে পুলিশ বলে গেল যে আজ আমরা চলে যাচ্ছি, নিজে থেকে তোমরা আলোচনা করো। আমরা इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची, लेकिन स्थिति तब बिगड़ गई जब प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। स्थिति को संभालने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात की गई थी। অর্ডার দেওয়া হয়েছে, অর্ডার নেই কি? অর্ডার নেই এগুলো তো টাওয়ার বসে যাচ্ছে না, তোমরা চলে যাও না। কোর্ট খোলা আছে, ডিএম অফিস খোলা আছে, চলে যাও। একটা অর্ডার করে নিয়ে চলে যাবো। আমি কথা দিচ্ছি। लेकिन इस पूरे मामले में कुछ सवाल उठ रहे हैं। क्या ये विरोध वाकई स्थानीय निवासियों का है
या फिर इसके पीछे कोई बड़ी योजना है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ प्रभावशाली लोग जिनके इस जमीन पर व्यक्तिगत हित जुड़े हुए हैं, आम जनता को ढाल बनाकर अपनी संपत्ति बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार बिजली के हाईटेंशन टावर जैसी सुविधाएं लोगों के लिए ही तो है, फिर ये विरोध किस उद्देश्य से किया जा रहा है? और अगर कोई साजिश हो रही है तो इसे बढ़ावा देने वाले कौन है? गौर करने वाली बात यह है कि डीएम ने भी इस काम के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि जमीन मालिकों को भी नोटिस दिया गया है, लेकिन जमीन मालिकों का दावा है कि उन्हें इस तरह का कोई नोटिस नहीं मिला है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मामले से जुड़े कुछ और तथ्य होंगे सामने। जुड़े रहें बंगावाज के साथ। इस साल दुर्गा पूजा के अवसर पर श्री बालाजी फैशन लेकर आया है स्पेशल फेस्टिव कलेक्शंस। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियों के कलेक्शंस। শ্রী বালাজি ফ্যাশন শাড়ি শুধুমাত্র শাড়ি নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার আভাস দিয়ে আধুনিকতার ছাপ। প্রত্যেক রকমের সিল্ক শাড়ি পাওয়া যাবে শ্রী বালাজি ফ্যাশনে। इसके अलावा लेटेस्ट डिजाइन के स्टिच एंड अनस्टिच सूट, डिजाइनर साड़ियाँ और वेस्टर्न के अट्रैक्टिव कलेक्शन से बालाजी फैशन में जो है हर घर की पसंद। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड ऑपोजिट सुहास सिनेमा हॉल, आसनसोल। 7 महीने पहले भी इस इलाके से इसी तरह के विवाद की खबरें आई थी। उस वक्त जमीन के मालिकों का कहना था कि डीएम के साथ बैठक हुई थी। कुछ लोगों ने तो मुआवजा मिलने की बात पर भी सहमति जताई और जमीन बिजली विभाग को सौंपे जाने की बात भी कबूली। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बिजली विभाग के काम में बाधा दे रहे हैं वो सत्तासीन पार्टी से जुड़े कुछ स्थानीय नेताओं से प्रभावित होकर ऐसा कर रहे हैं और प्रशासन से सीधे टकराने से बचने के लिए आम लोगों को सामने कर रहे हैं, क्योंकि उनके राजनीतिक रसूख का आधार ही प्रशासन और पुलिस से उनकी नजदीकियों पर टिका हुआ है। अगर उनके खिलाफ प्रशासन और पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया तो इलाके में उनका प्रभाव खत्म हो सकता है। तो आखिरकार ये सवाल बना हुआ है कि क्या इस विवाद में वाकई ग्रामीणों की आवाज सुनी जाएगी या फिर ये पूरी घटना किसी और की योजना का हिस्सा है? देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को कैसे सुलझाता है। फिलहाल माहौल शांत है, पर तनाव की स्थिति कभी भी बन सकती है और प्रशासन इस पर कड़ी नजर बनाए हुए है। बंगावाज की टीम इस मामले पर आपको हर अपडेट देती रहेगी। अगले एपिसोड में हम आपको मिलवाएंगे उस शख्स से जो इलाके में जमीन माफियाओं के आतंक का सामना कर रहा है और अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। वो बताएंगे कि किस तरह से इन माफियाओं के खिलाफ खड़े होना उनके लिए एक बड़ी चुनौती है और कैसे वह अपने अधिकारों को पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कहां-कहां गुहार लगा चुके हैं अब तक। तुम्हारे घर की फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। इस महत्वपूर्ण साक्षात्कार के लिए और जानिए कि जमीन माफियाओं से जूझते हुए इन लोगों की असल कहानी क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।